तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और वाणिकम। मैं सल कमल कुमार अंडमान निकोबार आइलैंड से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों पिछली बार मैंने 8वें चैप्टर यानी द जापानीज ऑक्यूपेशन इन अंडमान निकोबार आइलैंड के बुक के बारे में बात किया था। तो आज मैं 9वें चैप्टर द नेताजी डिक्लेयर्ड हेड ऑफ द स्टेट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जापानीज ने यहाँ पर 23 मार्च 1942 से लेकर 12 अक्टूबर 1945 तक का राज किया। एक ही ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड्स जापानीज ऑक्यूपेशन के बारे में अवेलेबल है, वह मेरे नाना स्वर्गीय रामाकृष्ण द्वारा लिखा गया ये बुक द अंडमान आइलैंड अंडर जापानीज ऑक्यूपेशन 1942 to 1945। सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को जिमखाना मैदान में तिरंगा फहराया था। इसका मतलब ये है कि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 के पहले पा लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि गत 10 से 15 वर्षों में अंडमान तथा निकोबार आइलैंड एक मेन टूरिस्ट स्पॉट के रूप में उभरा है और स्वराज द्वीप का बीच वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बीचेस में जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट की जिज्ञासा यहाँ के हिस्ट्री के बारे में जानने की अक्सर रहती है। इतिहास में देखा जाए तो अंडमान का उल्लेख रामायण में मिलता है, जब हनुमान सीता माता को बचाने वक्त श्रीलंका जाते समय इन द्वीपों का उपयोग सोपान की तरह किया। मलय लोगों ने इन्हें अंडमान कहा और अंडमान इसी शब्द का रूप है। दक्षिण पूर्व एशिया की जलयान यात्रा हेतु तमिलनाडु के चोला व्यापारी इन्हीं द्वीपों में पनाह लेते थे। पुर्तगाली, डेनिश, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच सत्ताधारी ने यहाँ अपना उपनिवेश बनाने का कार्य किया। इसके बाद अंग्रेजों ने किया। जापानियों ने यहाँ 23 मार्च 1942 से 12 अक्टूबर 1945 तक का राज किया। तो आइए आज मैं 9वें चैप्टर द नेताजी डिक्लेयर हेड ऑफ द स्टेट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। As a large number of Indians came in the hands of Japanese in Malaya, Burma and other Southeast Asian countries, the Japanese got Netaji Subhash Chandra Bose from Germany under certain arrangements with the European arm of the Axis. The world came to know about this only after his miraculous arrival at Singapore. His arrival gave fillip to Indians and courage to the Japanese. After a month or two of his arrival, a Southeast Asian conference with the representatives of Burma, Malaya, Netherlands, East Indies, now Indonesia, Philippines and occupied China was convened at Tokyo. As Netaji represented no Indian territory, he refused to take part in this conference as a representative of India, but on the insistence of the Japanese government, he took part as an observer. In this conference, it was declared by the Japanese government that the territory of the Andaman Nicobar Islands, being a part of the Indian subcontinent, was placed under him. This was done to give Subhash Chandra Bose the status of head of the Indian province so that he could be treated as other heads of the government in Southeast Asia. Netaji Subhash Chandra Bose has been handed over the reign of Andaman Nicobar Island and appointed Colonel Loganathan as the Chief Commissioner of Andaman Nicobar Island. At this stage, it must be recorded that Netaji Subhash Chandra Bose remained quite oblivious of what was going on in the Andamans. In the closing month of 1943, after Netaji Subhash Chandra Bose had been declared the head of the first Indian province that had come under the Japanese occupation, namely the Andaman Nicobar Islands, a provisional government of India was established at Singapore under Netaji. The Indian National Army was raised with men of the old regular army under the British, who were then the prisoner of war with the Japanese, and with some new men taken from the residents of Malaya and other parts of Southeast Asia. All other Indians unfit to join the army became member of Indian Independence League.
Netaji became the president and the head of other branches became the chairman of those respective branches under him. The Andaman branches was also affiliated to the mother organization, with the difference that this branch remained completely under the sphere of influence of the Japanese. This was because the means of communication were in the hands of the Japanese. तो दोस्तों, ये बुक द अंडमान आइलैंड अंडर जापानीज ऑक्यूपेशन 1942 टू 1945 के 9वें चैप्टर द नेताजी डिक्लेयर्ड हेड ऑफ द स्टेट का अंत यही होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आगमन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में होने जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह साल हम आज़ादी का महापर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर यह याद दिलाना चाहूँगा कि पार्ट ऑफ इंडिया की पहली आज़ादी को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर 2018 को यहाँ अंडमान में झंडा फहराया था। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान के जिमखाना मैदान में 30 दिसंबर 1943 को झंडा फहराया था। 30 दिसंबर 2018 को हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आगमन अंडमान में होने जा रहा है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। डू फॉलो मी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।